اور جو 8 فروری ہے اس کو ضرور نکلنا ہے، آپ سب نے ووٹ ڈالنا ہے۔ اب کئی لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ جی ہمارے جو ووٹ ہیں وہ گھر سے بہت دور رکھے ہوئے ہیں، ہمارا جو جس جگہ پہ بھی ووٹ ڈالنا ہے وہ گھر سے کافی زیادہ دور ہے، تو آپ لوگوں نے نکلنا ہے، یہ آپ کا فرض ہے، آپ کا ملک ہے، آپ لوگوں نے بچانا ہے، اور کون بچائے گا اگر آپ لوگ نہیں بچائیں گے۔ میرا جی السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر محمد عثمان۔ آج بات کرنی ہے الیکشن کے دن کے اوپر، آج بات کرنی ہے 8 فروری کے اوپر۔ لوگ بہت ہی مایوس ہیں، لوگ اپنا ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے، لوگوں کے اندر اتنا منفی تاثر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ ہماری یوتھ کے اندر تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ووٹ ہیں جو نئے ایڈ ہوئے ہیں۔ وہ جو 2 کروڑ سے زیادہ ایسے ووٹر ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ دینا ہے، اور اس میں تو کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کے اندر کافی زیادہ جوش و خروش یا ولولہ ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں الیکشن کے رزلٹ کا پتہ ہے تو ہم کیوں ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں۔ دیکھیں، آپ کو الیکشن کے رزلٹ کا پتہ ہو یا نہ ہو، ووٹ ڈالنا آپ کا ایک قومی فریضہ ہے۔ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو ہی کل کو کہہ سکیں گے کہ ہمارے جو ووٹ ہے اس کی صحیح قدر نہیں کی گئی۔ اگر آپ ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے تو آپ کسے کہیں گے؟ آپ کے پاس تو یہ حق ہی نہیں ہوگا کہ آپ لوگ کسی کے اوپر کوئی بات کر سکیں، کسی کو کہہ سکیں کہ جی حکومت ٹھیک نہیں بنی، کوئی 2 نمبری ہوئی ہے، تو آپ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے تو اپنا حق ہی نہیں ادا کیا۔ آپ کو تو ویسے ہی لوگ کہہ دیں گے چپ کر کے بیٹھو، آپ نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ جو ہمارے نئے ووٹر ہیں ان کے اندر بڑا جوش و جذبہ ولولہ ہے۔ جو ہمارے پرانے ووٹر ہیں جو پچھلے اتنے سالوں سے ووٹ دیتے ہوئے آئے ہیں، تو وہ تو جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کے اندر بھی لیکن اس دفعہ مایوسی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، ووٹ ڈالنا ہے، آپ کا کام ہے صرف ووٹ ڈالنا۔ دنیا میں آپ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ آپ کی اختیار میں کتنی چیزیں ہیں؟ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ مجھے وہ نام یاد بھول گیا ہے، لیکن کسی سے پوچھا کہ انسان کا اختیار کتنا ہے، یہ جو تقدیر ہے یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ اب دوسری اٹھاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا آگے سے کہ میں اب دوسری نہیں اٹھا سکتا، ایک اٹھا لیے تو وزن کس سے آئے گا۔ تو انسان کے اختیار میں اتنا ہی ہے، ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ کے اختیار میں بھی اتنا ہے، آپ کے اختیار میں صرف ووٹ ڈالنا ہے۔ آگے جو بھی رزلٹ آئے گا، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس نے جیتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو جتانا ہے۔ آپ کا ووٹ ہے وہ معنی رکھتا ہے، آپ کا ووٹ ہے وہ ویلیویبل ہے، آپ کا ووٹ ہے وہ قدر کا حامل ہے۔ اور جو ووٹ ڈالتے ہوئے یا آپ نے جب بھی ووٹ ڈال دیا ہو تو یو آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون۔ آپ نے اگر جس پارٹی کو بھی ووٹ دینا ہے، آپ کے نظریے کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق، جو پارٹی بھی ٹھیک ہے، جو پارٹی بھی آپ کو بہتر لگتی ہے، آپ کو ملکی مفادات کے اندر جو بھی پارٹی آپ کو بہتر لگتی ہے کہ یہ پارٹی کام کر رہی ہے ملکی مفادات کے اندر، تو آپ انہیں ووٹ ڈالیں۔ کسی بھی بندے سے انفلوئنس نہیں ہونا ہے، کسی بھی اپنے ریلیٹیو سے انفلوئنس نہیں ہونا ہے، کسی بھی اپنے جو دوست ہیں ان سے انفلوئنس نہیں ہونا، کسی کے کہنے میں نہیں آنا، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کس لیے بنایا؟ اس کا کوئی ریزن ہے؟ اگر آپ اشرف المخلوقات ہیں تو جانوروں میں اور آپ میں تو فرق ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ڈیسیجن میکنگ پاور دی ہے۔ اگر آپ لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور ہی نہیں ہوگی، آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے اوپر حکمرانی کس نے کرنی ہے۔ جب آپ کے اندر ایک ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، آپ ایک بیلٹ کے تھرو آپ ووٹ ڈالتے ہیں، تو آپ کو یقین بھی ہوگا کہ جی میں نے ووٹ ڈالا ہے، میرے اندر ایک ڈیسیجن میکنگ پاور ہے۔ ہاں، آپ کا جو جس کو آپ نے ووٹ ڈالا ہے وہ بندہ جیتتا ہے یا نہیں جیتا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یا جس طرح عوام جس کو سپورٹ کریں گے وہ بندہ جیتے گا یا ہارے گا، لیکن آپ نے ایک اپنا ووٹ چوز تو کیا ہے، آپ نے اپنا جو اختیار ہے اسے استعمال تو کیا ہے۔ بہت سے نوجوان یہ جو ہمارے 2 کروڑ سے پلس کی ابھی جو ووٹر ہیں نئے ایڈ ہوئے ہیں، تو ان میں سے بہت سے ایسے ینگ یوتھ ہے جن میں سے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، یہی لوگ سی ایس ایس کر کے آگے پوزیشنز کے اندر جائیں گے۔ تو اف یو آر نوٹ ان دا سسٹم یو آر انیبل ٹو چینج دا سسٹم۔ جب آپ ایک سسٹم کے اندر ہی نہیں ہیں تو آپ پھر اسے چینج ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کو اپنا ووٹ ضرور ڈالنا ہے۔ آپ کو چلو آگاہی تو ہو کہ ووٹ ڈالتے کس طرح ہے، آپ کو یہ تو اندازہ ہو جائے، کیونکہ ان میں سے جو 2.5 کروڑ ہے انہوں نے تو پہلی دفعہ ووٹ ڈالنا ہے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ کس طرح کاسٹ کرنا ہے۔ تو آپ کو آگاہی تو ہو کہ اس طرح الیکشن ہوتے ہیں، اس طرح ہم لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ آپ میں سے جب آپ لوگ سی ایس ایس کریں گے، اے سی لگیں گے، ڈی سی لگیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، آپ لوگوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں ملک کے اوپر، ملک کی ترقی کے اندر، ملک کی جو سوشو اکنامیکل انفلوئنس ہوتا ہے، جو ہماری مورل ویلیوز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ افیکٹ ڈالتی ہیں۔ آپ کے اندر یہ جو جن کا بھی ووٹ ڈالنا ہے، جنہوں نے آپ ڈالیں گے تو لوگوں آپ کے اندر ایک ابیلٹی تو ہوگی نا، آپ کو پتا ہوگا یار میرے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کس کو منتخب کرنا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ کسی کے آپ نے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، جو پارٹی آپ کو بہتر لگتی ہے آپ نے اسے ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ ویڈیو کسی بھی پارٹی کی فیور میں نہیں ہے، کسی بھی پارٹی کی مخالفت میں نہیں ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو لگے کہ یہ والی پارٹی بہتر ہے میرے ملک کے لیے، میرے ملک کے مفادات کے لیے، آپ نے اسے ووٹ ڈالنا ہے۔
आप पूरे अमन तरीके से जाएँ, अपना वोट डालें। आपको पता होना चाहिए कि बैलेट पेपर 2 तरह के हैं। एक एमपीए का होगा, एक एमएनए का होगा, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का होगा, एक मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली का होगा। आपके हल्के के जो उम्मीदवार हैं उनका आपको निशान पता होना चाहिए कि इस पार्टी का जो मुंतखब नुमाइंदा है वो ये वाला है, इसका कौमी निशान ये है, इसका जो निशान है वो ये है, कौमी असम्बली का निशान ये है या सूबाई असम्बली का निशान ये है। हर पार्टी का मुख्तलिफ निशान होता है, तो आपको अपने जो नुमाइंदे हैं उनका निशान पता होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात इसलिए तो पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात किस लिए पैदा किया है? फिर तो आप में और जानवरों में कोई फ़र्क ही नहीं होगा। जो नाउम्मीदी है और मायूसी है, ये तो गुनाह है, ये नहीं करना। हम एज़ अ मुसलमान हम तो मायूस होते नहीं, हमें तो अल्लाह के घर की उम्मीद हमेशा ही रहती है। जब आगे कोई रास्ता ना भी नज़र आ रहा हो, हमें तो फिर भी अल्लाह ताला के घर की उम्मीद होती है। तो ये जो आपका बैलेट पेपर है, ये मोर वैल्यूएबल है। आपका जो बैलेट है, यही मुल्क के अंदर एक चेंज लेके आता है। अगर आप लोग वोट नहीं डालेंगे, तो इलेक्शन का रिजल्ट तो फिर भी आ जाना है। आपके वोट डालने या ना डालने से इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर जो आना है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आप वोट डालेंगे, आप अपना एक कौमी फ़रीज़ा अंजाम देंगे, रिजल्ट जो भी है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। आपने जाना है, अपने आप में एक कौमी फ़रीज़ा अदा करना है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है। जब अल्लाह ताला ने आपको इंसान बना दिया है, तो आपके ऊपर कुछ जो चीज़ें हैं वो आयद होती हैं, कुछ आपके ऊपर जो रूल्स हैं वो आपके ऊपर लगते हैं। जब हम इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं, तो हमें पता है ना, हम जब इस्लाम के अंदर एंटर हो गए हैं, तो इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हमने उन्हें फ़ॉलो करना है। तो ये भी इन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही ये वाली चीज़ आती है। आप किसी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, उनके कवानीन को आपने फ़ॉलो करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप एक उस मुल्क के शहरी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसे वोट डालना है। अच्छा, आपको ये लोगों के अंदर बड़ा आता है कि जी आप किसी से इन्फ्लुएंस होके वोट डाल देते हो, तो आपने इस तरह इन्फ्लुएंस होके वोट नहीं डाल देना। अल्लाह ताला ने आपको ज़हन दिया है, अल्लाह ताला ने आपको एक दिमाग दिया है, उसे इस्तेमाल करना है। आपने देखना है कि ये बंदा मेरे मुल्क के लिए ठीक है, ये मुल्क मेरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप उसको आप वोट दें जो आपको लगता है। हमने ये नहीं देखना कि जी इसने मेरी नाली पक्की करवा दी है, इसने मेरी ये सड़क बना दी है। आपने मुल्की मफाद देखने हैं, अपना पर्सनल मफाद कोई नहीं देखना इसके अंदर। आपने मुल्की मफाद देखना है, जो बंदा लगता है कि आपको कि मेरे मुल्क के लिए ठीक है, आपने उसे वोट देना है। और जो 8 फरवरी है इसको ज़रूर निकलना है, आप सब ने वोट डालना है। अब कई लोगों का ये गिला है कि जी हमारे जो वोट हैं वो घर से बहुत दूर रखे हुए हैं। हमारा जो जिस जगह पे भी वोट डालना है वो घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो आप लोगों ने निकलना है, ये आपका फ़र्ज़ है, आपका मुल्क है, आप लोगों ने बचाना है, और कौन बचाएगा अगर आप लोग नहीं बचाएँगे। मेरा अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मेरा वोट काफ़ी दूर है, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह जाऊँगा वोट डालने के लिए। तो आप सब ने भी निकलना है, आप सब ने भी वोट डालना है, ये आपका कौमी फ़रीज़ा है, कौमी हक है। आप कल को गिला करेंगे, आप ये तो कह सकते हैं ना कि मैंने वोट डाला था इसलिए मैं गिला कर रहा हूँ। जब आपने वोट ही नहीं डाला होगा, तो आप किससे गिला करेंगे? तो जो वोट डालना है, ये आपने अपनी बरादरी, जो आप लोगों का होता है ना, ये जो बरादरी के बंदे हैं, हमने इसे जितवाना है, ये वाली चीज़ें नहीं आपने सोचनी। आपने मुल्की मफाद देखना है, अपनी बरादरी के बारे में नहीं सोचना सिर्फ, आपने एक कौमी सतह के लेवल पे सोचना है। अपनी जो सोच है ना, उसे थोड़ा-सा ब्रॉड करना है। मैं एक देख रहा था वीडियो, उनमें उन्होंने बताया हुआ था कि 80 टू 90% जो लोग होते हैं ना, वो एक ही तरह की ज़िंदगी जी के जीते रहते हैं सारी ज़िंदगी, और उसी के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। फिर बहुत ही कम 10% लोग होते हैं जो उस लाइफ़ से ऊपर जंप मारते हैं। मैं वो जैसे आपको पता है कि मोस्टली लोगों की यही रूटीन होती है कि जो वो जॉब कर रहे होते हैं, वो 80% हमारे जो लोग हैं वो ये इसी रूटीन के अंदर होते हैं, वो जॉब करते हैं, इसी के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। वो इससे बड़ा कभी कुछ सोचते नहीं है। इसी तरह ऊपर जो 10% होते हैं, वो लोग होते हैं जो उन्हें हायर कर रहे होते हैं। तो आप लोग थोड़ा बड़ा सोचें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके आगे भी दुनिया है। आप लोग जो वोट डालते हैं, जो क क हमारी गली पक्की हो गई है जी, हमारा ये वाला काम हो गया, तो इससे आगे भी दुनिया है। आपने मुल्की लेवल पे अभी देखा ही क्या है? आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं? आप में से कितने लोग होंगे कि जिन्होंने ने देखा है कि मुल्की लेवल के ऊपर क्या हो रहा है? कितने लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि बाकी जो ममालिक हैं, उनकी इकोनॉमी क्या चल रही है, उनके अंदर क्या प्रोग्रेस आ गई? किसी को नहीं पता। हमें ये होता है हमारी गली पक्की हो गई है, हमारे लिए यही काफ़ी है। ये चीज़ें काफ़ी नहीं है, आपने अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो आपको मिल रही हैं, आप ये देखें। आपकी गली तो पक्की होगी, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ आपको मिल रही हैं। आपका जो सेहत है वो आपको आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, आपके बच्चों को एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है। आपकी गली पक्की होगी, वो आपके पेट में खाना नहीं डालेगी। आपके बच्चों की एजुकेशन, वो पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, वो आपके पेट में खाना डालेंगे। आपकी हेल्थ फ्री होगी, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ें देखनी हैं आपने, ये चीज़ें सोचनी हैं आपने, इसके बाद आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है। जिस पार्टी को मर्ज़ी वोट दें, जो बंदा आपको लगता है कि ये मेरे सोसाइटी के लिए, ये मेरे कौमी मफ़ाद के लिए, ये मेरे मुल्क के लिए बेहतर है, उसको आपने वोट देना है। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, किसी भाई के, किसी भी रिश्तेदार के, किसी भी दोस्त के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। अल्लाह ताला ने आपको एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरों से अलग बनाया है, कि दूसरे जानदारों से अल्लाह ताला ने आपको अलग बनाया है। ये किसी और को नहीं अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कह दिया। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात कहा है।
تو आपके ऊपर कुछ इसके साथ जो ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं, आपका कुछ फ़रीज़ा भी है। तो आपने वोट ज़रूर डालना है, अपना जो हक है इसे ज़रूर इस्तेमाल करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट। कुछ नहीं सोचना आपने कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आपका ये मसला नहीं है। आपका मसला है आपने जाना है पुरअमन तरीके से वोट डाल के वापस आ जाना है। वहाँ आपकी फ़ौज, आपके पुलिस के एहलकार, सारे लोग आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद होंगे। वो सारे लोग वहाँ पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं। तो वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज होगी, पाकिस्तान के जो बाकी इदारे हैं उसके लोग होंगे, टीचर्स होंगे, डॉक्टर्स होती हैं वहाँ पे, एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद होती है, पाकिस्तान पुलिस के लोग वहाँ पे होंगे। तो हर बंदा आपको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे मौजूद होगा। तो आपने जाना है पुरअमन तरीके से जाएँ, अपना वोट कास्ट करें और अपने जो भी आपका काम है वो करें, वापस घरों को आएँ। फिर आप लोग आपस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि जी मैंने इसका वोट डाला है, ये मसला हुआ है या नहीं हुआ। उससे पहले अगर आप लोगों ने वोट ही नहीं डाला फिर तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें जो आपके इख्तियार में हैं वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इंसान का इख्तियार कितना है? सिर्फ एक टाँग उठा सकता है, दूसरी नहीं उठा सकता। आपका इख्तियार इतना ही था कि आप अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आए। तो जो चीज़ें आपके इख्तियार में तो आपने वो ज़रूर करनी होती है। एक हमारा मसला ये होता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो हम समझते हैं कि हमने की है। अगर कोई मसला हो जाए खुदा न ख़ास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो हम समझते हैं कि वो किस्मत की तरफ से है। तो भाई किस्मत कई दफ़ा इंसान खुद लिखता है। अभी अभी ये जो कल वाली किस्मत है ये आपने लिखी है। आप निकलेंगे तो वोट डालेंगे, आप नहीं निकलेंगे तो क्या फ़ायदा? तो ये तो कुछ चीज़ें इंसान के अपने हाथों के अंदर होती हैं। एक टाँग उठाना तो आपके हाथ में है ना, दोनों उठाना तो आपके हाथ में नहीं है। एक टाँग उठाना आपके हाथ में है। तो वो एक टाँग क्या है? आपका बैलेट पेपर है, आपका वोट है, जो कल को इस पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करेगा, मुल्क के लोगों की तकदीर का फ़ैसला करेगा, आपके बच्चों का फ़ैसला करेगा, आपका फ़ैसला करेगा। आपके बूढ़े होना है कल को, आपके बच्चों ने तालीम हासिल करनी है, ये उसका फ़ैसला करेगा ये बैलेट पेपर। तो आपने अपने सोच के मुताबिक, अपने ख़्याल के मुताबिक जो पार्टी आपको बेहतर लगती है उससे वोट डालना है। वोट को आपने ज़ाया नहीं करना आपने। इसी के साथ ख़्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह निगहबान। फ़ी अमान अल्लाह।